Dear learners, welcome back again in our today's session. So today we are going to talk about types of assistive technologies. आज हम बात करेंगे जो सहायक तकनीकी हैं और उनके प्रकार के बारे में. So first we will discuss about the meaning of assistive technologies. So if we talk about assistive technology, the term of it is generic and used to describe assistive, adaptive and rehabilitative devices for people with varying degrees of disability. Assistive devices are tools designed to improve the functioning of individuals with disabilities and reduce the effect of environmental barriers. They range from low-tech or simple devices, for example, walkers or pencil grips, to high-tech ones, power wheelchairs or computerized communication system. Assistive technology is any device used to increase and maintain the functional capabilities of a child with a disability by decreasing students' dependence on others. Assistive technology can increase the likelihood of functional independence and consequently increase the possibility of inclusion in the general education system. अगर हम सहायक तकनीकी की बात करें तो सहायक तकनीकी एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले लोगों के लिए सहायक, अनुकूलनशील और पुनर्वास उपकरणों को वर्णित करने के लिए किया जाता है. सहायक उपकरण वे उपकरण कहलाते हैं जो विकलांग व्यक्तियों की कार्य क्षमता में सुधार करने और पर्यावरणीय बाधाओं के प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. ये उपकरण कम तकनीकी या सरल उपकरणों जैसे वॉकर या पेंसिल ग्रिप से लेकर उच्च तकनीकी उपकरण जैसे पावर व्हीलचेयर या कंप्यूटराइज्ड संचार प्रणालियां तक हो सकते हैं. सहायक तकनीकी किसी भी उपकरणों को संदर्भित करता है जो विकलांग बच्चे की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए प्रयोग की जाती हैं. छात्रों की दूसरों पर निर्भरता को कम करके सहायक तकनीकी कार्यात्मक स्वतंत्रता की संभावना को बढ़ा सकती हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामान्य शिक्षा जो प्रणाली है उसमें शामिल होने की संभावनाओं को छात्रों की वृद्धि कर सकती हैं. So now next we are going to discuss about the types of assistive technology. So if we talk about the types of assistive technologies, it may be not important to all the technologies are appropriate for all the individuals. People have their own unique set of strength, weakness, interest, experience, and special abilities. Therefore, technologies that may be a blessings for one purpose may be a useless for another. So when choosing an assistive technologies, consider the specific individual, the setting and the task to be performed. ये ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी तकनीकी सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं. लोगों की अपनी अनूठी शक्तियां हैं, उनकी वीकनेसेस हैं, उनकी कमजोरियां हैं और उनकी स्ट्रेंथ है. उनकी रुचि और अनुभवों और विशेष क्षमताओं का एक प्रकार का एक सेट होता है. इसलिए एक तकनीकी एक उद्देश्य के लिए वरदान हो सकती है तो वह दूसरे उद्देश्य के लिए बेकार हो सकती है. इसलिए सहायक तकनीकी का चयन करते समय विशिष्ट व्यक्ति, सेटिंग और किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखें. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की तो देयर आर 4 टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज. सो द फर्स्ट वन इज technologies for students with hearing impairment. The second one is technologies for students with visual impairment. Third one is technologies for students with locomotor disabilities. And the last one is technologies for students with learning disabilities. अर्थात सर्वप्रथम अगर हम बात करें जो कैटेगराइज किया गया है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका सुनने की दुर्बलता वाले छात्रों के लिए तकनीकी. सेकंड है आपका दृष्टि दुर्बलता वाले छात्रों के लिए तकनीकी. थर्ड है आपका गतिशीलता दुर्बलता वाले छात्रों के लिए तकनीकी
और आपका अंतिम है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए तकनीकें। नाउ next we are going to discuss about the technologies for students with hearing impairment. First of all, we will discuss about what are the hearing impairment technologies. So any devices that is used to enhance a person's hearing capacity is referred to as an assistive listening device, ALD. Students with hearing impairment are who have a hearing loss. In Indian classroom, most of the students have been diagnosed with some type of hearing impairment that interferes with their ability to function without some type of assistive devices. अगर हम बात करें सुनने की दुर्बलता वाले छात्रों के लिए तकनीकी की, तो सबसे पहले हम ये जानना आवश्यक है कि ये सुनने वाली दुर्बलता की तकनीकी से तात्पर्य क्या है। अर्थात किसी भी उपकरण का प्रयोग जो किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे सहायक सुनने वाला उपकरण कहा जाता है। सुनने की दुर्बलता वाले छात्र वे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता में कमी होती है, जो उनके भाषाई ज्ञान को श्रवण चैनलों के माध्यम से संचारित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है, चाहे वह प्रबंधन के साथ हो या प्रबंधन कहीं ना कहीं कक्षाओं में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह देखने को आमतौर पर मिलती है। अब हम बात करते हैं, द फर्स्ट डिवाइस इज हियरिंग डिवाइस। दैट मीन्स हियरिंग डिवाइस पहला है आपका, दीज आर जनरली यूज्ड इन 4 स्टाइल्स: बॉडी वार्म, बिहाइंड द ईयर, आई ग्लास एंड इन द ईयर. School age children most often used post auricular hearing aids, which are designed used behind the ear. अगर हम बात करें हियरिंग एड्स की, तो ये आमतौर पर 4 शैलियों में उपयोग किए जाते हैं: शरीर पर पहने जाने वाले, कान के पीछे, चश्मे में और कान के अंदर. स्कूल आयु वर्ग के बच्चे अक्सर कान के पीछे उपयोग किए जाने वाले हियरिंग एड्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें पोस्ट ऑरिकुलर हियरिंग एड्स कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज सेकंड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड या FM एम्प्लीफिकेशन सिस्टम. FM transmission devices creates a direct link between a teacher who wears a microphone and the students who wears a hearing aid. In this system, background sound is reduced and the teacher and students can easily communicate without any distractions. अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड प्रबंधन प्रणाली जिसे कहा जाता है, FM ट्रांसमिशन डिवाइसेस, शिक्षक जो माइक्रोफोन पहनता है और जो छात्र जो हियरिंग एड पहनते हैं के बीच एक सीधा लिंक बनाता है. इस प्रणाली में पृष्ठभूमि की ध्वनि जो बैकग्राउंड का साउंड है उसको कम कर दिया जाता है और शिक्षक और छात्र बिना किसी बाधा के आसानी से संवाद कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज collicular implant. The collicular implant is a surgically placed beneath the skin. It bypasses the damaged part of the inner ear and stimulates nerves that have not been stimulated before. Signals are sent continuously when sound is present in the environment. But what is special in the speech processor reduces the unwanted background noise. अब कॉक्लियर इम्प्लांट की अगर हम बात करें तो कॉक्लियर इम्प्लांट को सर्जरी द्वारा जो त्वचा है स्किन के नीचे लगाया जाता है. यह आंतरिक कान की क्षतिग्रस्त जो हिस्से हैं उसको बाईपास करता है और उन नसों को उत्तेजित करता है जो पहले कभी उत्तेजित नहीं थी. जब पर्यावरण में जो इन्वायरमेंट में कोई भी किसी भी प्रकार का साउंड या नॉइस उत्पन्न होती है तो लगातार संकेत भेजे जाते हैं, लेकिन स्पीच प्रोसेसर में विशिष्ट जो अवांछित कहा जाए जो बैकग्राउंड शोर है, बैकग्राउंड नॉइज है, उसको ये कम कर देती है.
Now, next we are going to talk about the technologies for students with visual impairment. The term visual impairment, it describes a broad range of visual abilities and needs. Following are the assistive technologies for the students with visual impairment. अगर हम दृष्टि वाले छात्रों के लिए तकनीकी की बात करें तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि दृष्टि बाधित तकनीकी होती क्या है। तो दृष्टिबाधिता शब्द जो है वो विभिन्न प्रकार की दृष्टि से संबंधित क्षमताओं और आवश्यकताओं को वर्णित करता है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बहुत सारी तकनीकी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस प्रकार है। द फर्स्ट वन इज enlarged text for the students with some executive visual functions, providing the text information in large format may be the simplest strategies. Enlarged text can be acquired through a variety of sources, including the barcodes or materials modified through the magnification features of copy mechanics. And while text size of most digital materials can be easily adjusted to the user's preferences. अर्थात जिन छात्रों के पास कुछ मौजूदा दृष्टि कार्य क्षमता है उनके लिए टेक्स्ट जानकारी को बड़े प्रारूप में प्रदान करना सबसे सरल रणनीति हो सकती है। बड़ा टेक्स्ट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे विक्रेता या कॉपी मशीनों की वृद्धि सुविधा के माध्यम से संशोधित सामग्री शामिल है, जबकि अधिकांश डिजिटल सामग्री के टेक्स्ट का आकार उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। Now next one is Braille. Braille is an essential tool for teaching literacy skills and will serve as a lifelong skills. Learning Braille allows students to experience aspects of written language such as spelling, grammar, and sentence structure, and will provide a valuable foundation for written language. अगर हम बात करें ब्रेल साक्षरता की, तो ब्रेल साक्षरता कौशल सिखाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है और यह आजीवन कौशल के रूप में कार्य करेगा। ब्रेल सीखने में छात्रों को बढ़ती कहा जाए व्याकरण और वाक्य संरचना जैसी लिखित भाषाओं के पहलुओं को अनुभव करने की अनुमति मिलती है और यह लिखित भाषा के लिए मूल्यवान आधार प्रदान करता है। Now next one we are going to talk about the arithmetic and braille writing skills. So this has an arithmetic slate on one side and a writing slate on the other side. It also has a reversible type of clamp and two guidelines supplied with a wooden. So इसमें अगर हम एक बात करें तो ये गणित और ब्रेल लेखन स्लेट है। इसमें एक तरफ गणित स्लेट और दूसरी तरफ लेखन स्लेट होती है, जिसमें उलटने योग्य टाइप क्लैंप और दो गाइडलाइन होती हैं जो एक लकड़ी के स्टाइल्स के साथ आती है। Now next abacus. Abacus it is the most important or commonly used techniques. So it is used to teach early number concepts, operations and fractions. Can be used in a lieu of paper and pencil and is a low-tech substitute for a calculator. इसका उपयोग प्रारंभिक संख्यात्मक अवधारणाओं, संक्रियाओं और भिन्नों को सिखाने के लिए किया जाता है। इसे कागज और पेंसिल के स्थान पर उपयोग किया जाता है और ये कैलकुलेटर के लिए एक कम तकनीकी विकल्प है। Now next one is adaptive paper. A specialized paper with darkened lines, raised lines or using color can significantly improve the writing of students with low vision. अर्थात अगर हम बात करें अडेप्टिव पेपर की, तो अडेप्टिव पेपर जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है, इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसके द्वारा कागज पर जो लिखा हुआ है उसको आसानी से ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं देखने में जिनका विजन बहुत कम है, ऐसे छात्रों के लिए ये बहुत सहायक तकनीकी है। गहरे रंग की रेखाओं और उभरी हुई रेखाओं या रंग का उपयोग करने वाली विशेष कागज से कम दृष्टि वाले छात्रों की लेखन क्षमता में काफी सुधार किया जा सकता है। Now next one is Braille. Braille
एम्बेसडर छात्रों को जो है उनके पूर्ण कार्य को ब्रेल प्रारूप में प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो a braille embosser allows the student to print out the completed work in a braille format. Now, next one is braille labeler. अगर हम बात करें braille labeler की, तो labeling items throughout the student's environment will not only reinforce vocab, spelling, and reading, but will also promote independence and assist with orientation. छात्र के वातावरण में वस्तुओं को लेबल करना न केवल शब्दावली, वर्तनी और पढ़ने को सरल और मजबूत करेगा, बल्कि स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देगा और अभिविन्यास में भी सहायता प्रदान करेगा। Now, next one is technologies for students with locomotor disabilities. First, we will understand the meaning of locomotor disabilities. So, according to the World Health Organization in 1980, has defined locomotor disability as a disability to an individual's ability to execute distinct it's kind of activities associated with moving both himself and objects from place to place. अगर हम बात करें कि जो गतिशीलता विकलांगता वाले छात्रों के लिए तकनीकी है, तो सबसे पहले हम ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार की विकलांगता किस श्रेणी में आते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषित करते हुए 1980 में कहा कि गतिशीलता विकलांगों को एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति स्वयं को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने की क्षमता में विकलांगता के रूप में परिभाषित किया है। गतिशीलता अर्थात जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो किसी भी कार्य को, एक्टिविटी को करने में सक्षम नहीं हैं, उन व्यक्तियों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखा गया है। So the assistive devices used for locomotor impairment are, first one is wheelchair. Despite the rapid progress in the field of science, technologies, there has been a very little innovation in a wheelchair design over the last 200 and 300 years. The folding wheelchairs came in 1993 and wheelchairs were developed in the early 1970s. Wheelchairs are devices that can be manually propelled or electronically propelled. Wheelchairs allow people with physical disabilities to perform mobility-related daily activities. अर्थात अगर हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र गति के बावजूद पिछले 200-300 वर्षों में व्हीलचेयर डिजाइन में बहुत कम नवाचार हुआ है। 1933 में फोल्डिंग व्हीलचेयर आई और 1970 में दशक की शुरुआत में पावर्ड व्हीलचेयर विकसित हुई। व्हीलचेयर वे उपकरण हैं जिन्हें मैनुअल रूप से या विद्युत रूप से संचालित किया जा सकता है। व्हीलचेयर लोगों को शारीरिक विकलांगता के साथ साथ गतिशीलता से संबंधित दैनिक गतिविधियों को करने की अनुमति प्रदान करता है। Now next one is Sathi Walker. It is a project developed by Rehabilitation Research and Device Development Lab at IIT Madras. It is a self-propelled mobility devices for children with locomotor disability. The projects aim at developing an affordable, independent mobility devices for such children who may otherwise be able to walk only with support from a caregiver. It includes a seat and a sit-to-stand mechanism so that the children can stay in the devices for longer period of time. साथी वॉकर ये आईआईटी मद्रास के पुनर्वास अनुसंधान और उपकरण विकास लैब द्वारा विकसित एक परियोजना है। यह गतिशीलता विकलांगता वाले छात्रों के लिए एक आत्मचालित गतिशीलता उपकरण है। इस परियोजना का उद्देश्य, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसे छात्रों के लिए एक सस्ती और एर्गोनॉमिक स्वतंत्र गतिशीलता उपकरण विकसित करना है जो अन्यथा केवल एक देखभालकर्ता के समर्थन से चल सके।
इसमें एक सीट और एक बैठने से और एक खड़े होने का तंत्र शामिल है ताकि बच्चा लंबे समय तक इस उपकरण को यूज कर सके। The next one is and the last is prosthetic. Prosthetic is an artificial device that replaces a missing body part which may be the lost through the trauma, disease or any kind of condition. Prosthetics are intended to restore the normal functions of the missing body parts. The basic goal of the prosthetic devices is to provide the disabled person an aid that can perform the functions of one और मोर लिम्स। प्रोस्थेसिस एक कृत्रिम उपकरण है जो एक खोए हुए शरीर के हिस्से को बदलता है, जैसे किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण या जन्म के द्वारा किसी भी जन्मजात किसी स्थिति के कारण किसी पर्सन ने किसी की कोई भी हाथ या पैर या बॉडी का कोई पार्ट क्षति हो गया है या नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रोस्थेसिस एक प्रकार का असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में प्रयोग किया जाता है और छात्रों को सामान्य जीवन जीने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। Now next we are going to talk about the technologies for students with learning disabilities. सीखने में विकलांगता वाले छात्रों के लिए तकनीकी। So the term learning disabilities means a disorder in one or more of the basic psychological, physiological process involved in understanding or using language spoken or written that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read and write, spell or to do mathematical calculation, including such as a perceptual disabilities, brain injury, minimal brain, dyslexia and developmental any kind of issues. So सीखने की विकलांगता का अर्थ है भाषा को समझने या उपयोग करने में शामिल एक या एक से अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रियाओं में से एक विकार होता है, जैसे बोली जाने वाली या लिखित या जो सुनने में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, वर्तनी, गणित, गणना करने में अपूर्णता के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसमें धारणा विकलांगता, मस्तिष्क की चोट या किसी प्रकार का डिस्लेक्सिया या विकासात्मक aphasia शामिल है। The assistive technologies used for learning disabilities are as follows. So the first one is electronic worksheet. So if we talk about the electronic worksheets, so students with learning disabilities like dyslexia can use the electronic worksheet to complete their assignments. These worksheets can help students to line up words, equation and numbers on their assignments. So पहली है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट जो है डिस्लेक्सिया जैसी सीखने की विकलांगता वाले छात्र अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। ये वर्कशीट छात्रों को अपने असाइनमेंट्स पर शब्द, समीकरण और संख्याएं लाइन अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑडियो बुक एंड पब्लिकेशन। Recorded books allow users to listen to text and are available in a variety of formats such as audio cassettes, CDs and MP3s. Downloads, special playbooks units allow users to search and bookmark pages and chapters. Subscription services offers extensive electronic library collections. तो अगर हम बात करें ऑडियो बुक्स एंड पब्लिकेशन की, तो ऑडियो किताबें और प्रकाशन रिकॉर्ड की गई किताबें उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट सुनने की अनुमति देती है और ये विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध होती है, जैसे ऑडियो कैसेट है, सीडी है, MP3 है, डाउनलोड है। विशेष प्लेबैक तकनीकी है। उपयोगकर्ताओं को पृष्ठों और अध्यायों को खोजने और बुकमार्क करने की अनुमति भी देती है। सदस्यता सेवाएं व्यापक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संग्रह प्रदान करती है। बहुत सारे ऐसे ऑडियो बुक्स है, पब्लिकेशंस है जहां पर रिकॉर्डेड बुक्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। जिस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, वह सुनकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है।
Now, next one is talking calculator. Talking calculator are generally greatly beneficial for the students who have dyscalculia. The gadget makes it easier to check assignments, read numbers, and perform calculation. Other than talking calculators, the students can also check out the test to voice devices. They function on the same concept on converting the written words into the audible track. And students can use these devices to check their spelling or to improve their reading comprehension skills. तो टॉकिंग कैलकुलेटर मार्केट में अवेलेबल हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर डिस्कैल्कुलिया वाले छात्रों के लिए बहुत लाभकारी हैं। ये जो उपकरण है, डिवाइसेस हैं, ये असाइनमेंट्स की जानकारी, असाइनमेंट्स की जांच भी कर सकते हैं, संख्याओं को पढ़ने और गणना करने में आसान बनाते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर के अलावा छात्र टेक्स्ट टू वॉइस डिवाइस भी ले सकते हैं। ये उपकरण लिखित शब्दों को श्रव्य ट्रैक में बदलने की अवधारणा पर काम करते हैं। छात्र आसानी से इन डिवाइसेस का यूज करते हुए अपनी लर्निंग को एक गति प्रदान कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज वर्ड प्रोसेसर। If we talk about the word processor are a computer-based writing system that enable the user to type the text onto a computer screen before printing on a paper. Word processor allow the users to edit and correct his written work more efficiently than doing so by hand. Text is also easily underlined and bold-faced or centered. The ability to rearrange text in these ways may reduce the writer's fear of making errors since the text can be easily changed. अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसर की, तो वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर आधारित एक लिखने की एक कला है, एक प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को, जो छात्र को कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसे बाद में कागज पर मुद्रित किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर उपयोगकर्ता को, छात्र को अपने लिखित कार्य को हाथ से करने के बजाय कहीं अधिक कुशलता से संपादित करने में मदद करता है। टेक्स्ट को आसानी से रेखांकित कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, केंद्रीकृत कर सकते हैं। इन तकनीकी की मदद से टेक्स्ट को पुनः व्यवस्थित भी किया जा सकता है, उसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए मार्केट में बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। बस आवश्यकता है कि उन टेक्नोलॉजीज का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और उसका उपयोग कैसे किया जाए, कैसे उन तकनीकी का उपयोग करके उन छात्रों के लिए उनकी लर्निंग में उन तकनीकी की सहायता से उनकी जो लर्निंग है उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि जो टीचर्स है उनको ट्रेन किया जाए, जिससे वे ट्रेनिंग के आधार पर तकनीकी का कक्षा में उपयोग कर सके और छात्र उससे लाभ ले सके।